the power sharing. In the chapter, we have studied about the Belgium and the Sri Lanka. So I am continuing with that last point, not but with the starting point, how the two countries are within the same size, in the same population. They have, if you look about the population composition, they have approximately same population also and the same size also. So first we look about the map of Belgium. So if we consider this is the Belgium and here is the capital Brussels. This is the Flemish area and there is 59% of the Dutch speaking population. And here is the, I think, Wallonia. Consisting of 40% of French speaking people. And the left one is around this part that speak German. And on the other side, we look the same of the Sri Lanka. We can see here, yeah. In the Sri Lanka, the vast area, the majority area here, this is in the map, it shows the Sinhala speakers. And here, the net type structure, this shows the, Tamil speakers. Tamil speaking population, okay? So around the, the majority area of the approximately 74% of the Sinhala speaking people, and the left one around 18% of the Tamil speaking people are in that Tamil speaking people. We have 13% of Sri Lankan Tamil. From that 18%, we have 13% of the Sri Lankan Tamil, and the left one, that means the 5% of the Indian Tamil. Now, who are the Sri Lankan Tamils? The people who are indigenous to the Sri Lanka, these are called the Sri Lankan Tamils, and in the period of colonial rule, the person who are traveling from India to Sri Lanka, that are called as the Indian Tamils. So their language is the same as the Indian Tamils. So this is the basic composition of, the speaking composition of the two different countries. We have here the Belgium, and here we have the Sri Lanka. So, what happened in that capital city, that is Brussels? In Brussels, we have 80% of French-speaking people. 80% of, and 20% we have the Dutch-speaking people. So you can see that if we consider the whole country, we have the approximately 60% of the population that is speaking Dutch, and the 40% of speaking French. So we can see here that if we consider the whole country, the majority rule of the Dutch speaking people. But if we see the capital city in the Brussels,
we have 80% of the French speaking. So in Brussels, in the capital city, French is in majority. French speaker in majority in the capital city, and vice versa, French is in the minority in the whole country. Here, so we can see these things, and we can see how these countries have been taking a step differently. How the Sri Lanka form a majoritarian rule, and how they the leaders of the Belgium people come to closer and take out the the threshold point, and take out the a specific point that can for the betterment of the whole country. यहाँ पर सिर्फ बताने वाली बात ये थी कि ये आप देख सकते हैं कि बेल्जियम है और श्रीलंका है, दोनों का जो साइज है लगभग बराबर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर दोनों की कंपोजिशन भी देखें तो यहाँ पर अगर सिन्हाला 74% में मेजोरिटी में है, तो यहाँ पर आपके डच पीपल जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन है, जो तमिल स्पीकिंग पीपल जो है श्रीलंका में वो माइनॉरिटी में है। और यहाँ पर आपके कौन है माइनॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, क्योंकि सिर्फ 40% है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अगर इसी कंट्री के अंदर बात करी जाए तो ब्रसेल में जो है माइनॉरिटी में डच है और मेजोरिटी में फ्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि हर जो भी मेजोरिटी में होता है वो ये सोचता है कि हमारा रूल हो जाए, हमारा शासन हो जाए और हम रूल करें, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी सिन्हाला जो क्या नाम है मेजोरिटी में है, वो ये सोचती है कि हमारा रूल हो जाए और हम शासन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों कंट्री के कंपोजिशन जो है लगभग एक ही तरीके का है, कि कोई मेजोरिटी में है कोई माइनॉरिटी में है। लेकिन इन दोनों कंट्री ने अपने आप को आगे चलकर किस तरह से इवॉल्व किया, अपने आप को किस तरह से बनाया, वो हम देखेंगे अगले फॉर्म में, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैप का कंपोजिशन है। एक और चीज है यहाँ पर देखिए, ये जो ज्यादा एरिया है वो किसका है, क्या नाम है, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है। तो रुकिए मैं थोड़ा रफ करके फिर बताऊंगा, जगह नहीं है, चलिए ऊपर बता दूं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी तो अब कोई बात नहीं होनी है बेल्जियम। हम लोग बात करेंगे पहले श्रीलंका की, ठीक है। देख, वैसे मैं बेल्जियम का ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। बेल्जियम में हम ये लिख सकते हैं, इन बेल्जियम if we consider the whole country, Dutch speaking people is Dutch speaking people in majority, ठीक है। And French in minority। मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? मेजोरिटी किसे कहते हैं, माइनॉरिटी जो 50% से अबव हो गया वो मेजोरिटी होगा, जो 50% से डाउन हो गया वो माइनॉरिटी होगा। लेकिन इसका जो है वाइस वर्सा किस में हो जाएगा, कैपिटल सिटी में। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें, कैपिटल सिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका मेजोरिटी में कौन रहेगा, फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो आपका क्या है, मेजोरिटी में है, ठीक है। और डच जो है वो आपकी माइनॉरिटी में। तो ये बेल्जियम का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये जब तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। बेल्जियम जो है, अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो डच स्पीकिंग जो है मेजोरिटी में है, पूरे कंट्री की बात करते हैं तो। और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर हम क्या नाम है सिर्फ कैपिटल सिटी की बात करते हैं, यानी ब्रसेल की बात करते हैं, तो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे अब श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका का क्या मामला हुआ, और श्रीलंका में कुछ चीजें और बतानी है आपको यहाँ पर। देखिए, श्रीलंका का जो वास्ट एरिया है वो कौन से स्पीकर हैं मेजोरिटी में, सिन्हाला। और जो सिन्हाला की एक और बात है कि
Sinhala speaking people are mostly क्या थे ये? बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो है वो मोस्टली क्या है? बुद्धिस्ट है। सिन्हाला के जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट है। उनका रिलीजन क्या है? उनका रिलीजन बुद्धिस्ट है। ओके। और ये जो आपके पास बाकी बचे हुए जो तमिल स्पीकिंग पीपल है, चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो चाहे वो इंडियन तमिल हो, 13 + 5 = 18। टोटल जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो 18% है। बाकी जो बच्चे वो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, जो 8% बाकी बच्चे, अगर हम इनको कैलकुलेट कर ले 74 + 18 टोटल 92, बाकी जो 8% बचे हैं वो आपके अदर लैंग्वेज बोलते होंगे। ठीक है। तो ये जो बाकी जो तमिल स्पीकिंग है वो मोस्टली क्या थे? तमिल स्पीकिंग पीपल आर मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है। जो तमिल स्पीकिंग पीपल है उनका रिलीजन क्या था? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो अगर हम रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से भी देखें, अगर हम रिलीजियस कंपोजिशन भी करें श्रीलंका का, तो वहां पर डोमिनेंस किनका था? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का। और रिलीजन में देखें तो बुद्धिस्ट का ये क्या नाम है? डोमिनेंस था। यानी वो ज्यादा तादाद में थे, बुद्धिस्ट मेजोरिटी में थे, और हिंदूज और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, नोटेड डाउन। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं। कैन आई रब इट? तो पावर शेयरिंग का ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये आपका टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ द टू कंट्रीज। आप देख कह सकते हैं इसको कंपोजिशन था कि किस तरीके का वहां पर कंपोजिशन है, कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटी में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है? मेजिटेरियन इन श्रीलंका। मेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये जो वर्ड है मेजिटेरियनिज्म, ये क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेजिटेरियनिज्म का मतलब पता होना चाहिए। मेजिटेरियनिज्म भी मेजोरिटी से निकल करके आया। मेजिटेरियनिज्म एक ये कॉन्सेप्ट है। मेजिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ इन विच द पीपल हु आर इन मेजोरिटी इन एनी कंट्री, they think that they can rule or they can dominance over the non-vegetarian, over the minority people। ये है मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट। जो मेजोरिटी में है वो ये चाहते हैं कि सारा जो रूल है, सारा जो कानून है, जो सारी चीजें हैं वो मेरे पास रहे। ठीक है, ये है मेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारे पास दोनों कंट्री थी, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। दोनों का लगभग कॉम्पोजिशन अलग अलग है, दोनों में है। तो अब देखिए कि श्रीलंका का क्या आगे चलकर क्या नाम है हालत हुई, और श्रीलंका ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, और किस तरह से श्रीलंका डिस्ट्रक्शंस की तरफ चली गई, और बेल्जियम ने किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रक्शन से रोका, और किस तरीके से जो है अपने क्या नाम है पावर को शेयर करके जो है अपने कंट्री के अंदर जो है डेवलपमेंट किया, और अपने कंट्री को कॉन्फ्लिक्ट से, वार से, इन सब से रोका। लेकिन इसका श्रीलंका का थोड़ा मामला उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटिज्म रूल आ गया। अब देखिए इस मेजोरिटिज्म में क्या हुआ। तो ठीक है, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस जो है हमारे साथ साथ मिली। कब मिला श्रीलंका को इंडिपेंडेंस? या श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। ठीक है, 1948 में श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद जो क्या नाम है मेजोरिटी में जो पीपल लोग थे, सिन्हाला थे, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। गवर्नमेंट किसकी बनी? सिन्हाला की गवर्नमेंट बनी। अब सिन्हाला जो मेजोरिटी में थे वो जीत करके आए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि सिन्हाला
to dominance. हाँ, एक के ऊपर मतलब भारी कर देना, उसको किसी दूसरे को दबा देना, अपने आप को आगे उभार लेना, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी के ऊपर जो उन्होंने अपना डोमिनेंस किया, इसी को हम मेजोरिटेरियनिज्म ही कहते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर डोमिनेंस करने को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन 1956 में सिन्हाला जो है क्या करती है, लॉ पास कराती है 1956 में। और उस लॉ पास कराते, उस लॉ में क्या होता है, 1956 में जो लॉ पास कराती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाती है, उसके अंदर ये क्या करती है कि जो सिन्हाला स्पीकर हैं उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाए, ओके। इन 1956 मेजोरिटी गवर्नमेंट In 1956, majority government passed the law in which they give the preference to the Sinhala speaking people. Like आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब लगना है, टीचर का रिक्रूटमेंट अगर होगा तो उसके अंदर जॉब किसको दी जाएगी, पहले सिन्हाला को दी जाएगी, उसके बाद किसी दूसरे को। चलो यहाँ तक बात, बल्कि यहाँ तक बात नहीं ठहरी, इसके आगे और बात क्या हो गई कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता था वो किनको मिलता था, सिन्हाला को मिलता था, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि अगर अब आप इस तरीके का काम करेंगे या एक किसी मेजोरिटी को या एक किसी तबके को आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जो दूसरे और वहां पर जो लोग रह रहे हैं तो उनको तो परेशानी होगी ही। आप दोनों का सेम नंबर है, आपने उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, क्यों, सिर्फ वजह यह है कि वो मेजोरिटी में है। तो ये चीज उनको गलत लगी। तो इससे क्या हो गया, जो दूसरी माइनॉरिटी में क्लास थी, जो तमिल स्पीकर थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो अपने आप को एलिनिएट समझने लगे, यानी कि उनको फिर बाहर ही कर दिया गया ना। अगर सारा जो क्या नाम है प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी सिन्हाला को मिल रही है, तो जो दूसरे बचे हुए कौन होंगे, तमिल स्पीकर हो गए, वो क्या हो गए, एलिनेट हो गए, यानी बाहर वो लोग अपने आप को जो है क्या नाम है, उनको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उन लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। लोग पर धीरे धीरे क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वार हुए, सिविल वार हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्या हो गया कि श्रीलंका के अंदर डिस्ट्रक्शंस पैदा हो गए, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शंस पैदा होने की वजह क्या रही कि गवर्नमेंट का आपस में जो है मेल नहीं रहा, या गवर्नमेंट ने जो है किसी एक तबके को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, किसी और दूसरे तबके को छोड़ दिया, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी, उनको एलिनेट कर दिया, उनको बाहर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। तो श्रीलंका का क्या समझ, हाँ कोई सवाल है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 1956 में काफी सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटीज, लैंग्वेज भी पास किया गया था कि सिन्हाला जी होगा वही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और आपको जो है जॉब की जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज जो है वो किसको मिलती थी, सिन्हाला को ही मिलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे जो क्या नाम है प्रेफरेंस जो है, पहला प्रेफरेंस आप हर चीज में सिन्हाला को दोगे, तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कम्युनिटी है उनको परेशानी होगी। तो इस वजह से उन लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू करी, अपने राइट्स को मांगना शुरू किया। उन लोगों ने जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, कि लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज तमिल है, तो इस वजह से उनको जो है
कम प्रेफरेंस दिया जाता है, या उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल पा रही है, या उनकी लैंग्वेज को जो है क्या नाम है रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए स्ट्राइक शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वार शुरू हुआ। उसके बाद पूरा डिस्ट्रक्शन पैदा हो गया, और श्रीलंका जो है क्या नाम है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया इस चीज को लेकर के। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेल्जियम का। देखिए, पावर शेयरिंग जो क्या है, अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखें पावर शेयरिंग का, एक सम पर्सन, कोई एक पर्सन है उसके पास पावर है, ही कंसिडर्ड द स्ट्रेंथ द पावर, इफ ही गिव्स सम पावर ऑफ द अदर पर्सन, तो क्या होगा कि उसकी वो जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, अगर हम एक नजर से देखें तो वो वीक हो जाएगा। अगर उसके पास सारी क्या नाम है पावर है कि वही जस्टिस करेगा, वही कानून बनाएगा, ठीक है, वही गवर्नमेंट को रन करेगा, सारा काम अगर एक आदमी के पास है, फिर उसने क्या कर दिया, अपने काम को बांट दिया, तो उसके पास तो आप एक ही पावर रहेगी, या तो वो उसको कहा जाए कि आपको सिर्फ एक ही पावर रखनी है, तो उसके पास पहले 3 पावर थी, एग्जीक्यूटिव की भी, जुडिशरी की भी और लेजिस्लेचर की भी, और उसको कहा जाए सिर्फ आपको एक पावर रखनी है। तो ऐसे अगर हम एक आदमी के ऊपर कंसिडर करें तो क्या होगा कि पावर जो है शेयर करने से क्या हो रहा है, वीकेंड हो जा रहा है, यानी आदमी जो है कमजोर हो जा रहा है उस चीज को लेकर के। लेकिन अगर हम बेल्जियम की स्टोरी देखें तब आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग से कितना प्रॉफिट हुआ। वो जो पावर शेयर किया गया, क्योंकि बेल्जियम श्रीलंका की तरह बेल्जियम के अंदर भी क्या नाम है डिफरेंट कंपोजिशन है स्पीकिंग लैंग्वेज के, तो अब हम देखेंगे कि उसने क्या नाम है अकोमोडेट किस तरह किया। बेल्जियम ने अकोमोडेट कहते हैं साथ रखने को, एक साथ कोई रहता है उसको अकोमोडेट कहते हैं। हम लोग देखेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि जो उनके लीडर्स थे, लीडर्स ऑफ द बेल्जियम decided to amend the constitution और ये अमेंडमेंट कितनी बार लाया गया था, एक बार दो बार नहीं, चार चार बार अमेंडमेंट किया गया, कि तब जाकर के एक परफेक्ट जो है इनको प्रोविजन मिला कि हाँ जिससे सब कोई हर किसी को राइट मिल सका, हर माइनॉरिटी क्लास को। तो द लीडर्स ऑफ द बेल्जियम डिसाइडेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मेनी टाइम्स दे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 4 टाइम्स। और कब से कब तक के बीच में, आई थिंक 1973 टू 1993, ये 1970 टू 1993, कुछ और है क्या, या 1970 टू 1993 तक 4 टाइम्स जो है उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। फिर बाद में जाकर के उनको एक तो अमेंडमेंट किस लिए लेके क्या है, अकोमोडेट करने के लिए, यानी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। The leaders of the Belgium decided to amend the constitution 4 times. After that, they succeed. जो डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी किस चीज को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के जो डाइवर्सिटी थी उसको यूनाइट करने के लिए सक्सीड रहे, यानी कि कामयाब रहे। 4 टाइम उन्होंने क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, लेकिन तब जाकर के क्या हुआ कि जो उनके अंदर जो डाइवर्सिटी थी उस चीज में उन लोगों ने सारे लोगों को एक साथ ला करके जोड़ा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। चलिए कुछ एलिमेंट्स हैं ऑफ द बेल्जियम मॉडल।
some elements of the Belgium model. Okay. पहला क्या था कि जो क्या नाम है पूरे अगर हम कंट्री को कंसीडर करें तो उसमें डच पीपल मेजोरिटी में थे और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल कंट्री की होती है, ठीक है ना। इन सेंट्रल द रिप्रेजेंटेशन in central government, the representation of both सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था। रिप्रेजेंटेशन मतलब दोनों कंपनी के मिनिस्टर्स को दिया गया। बोथ कम्युनिटी का यहाँ पर मतलब है फ्रेंच एंड डच, ठीक है। जर्मनी जो है वो भी माइनॉरिटी में थी, 1% थी, तो उनको जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो आई, इसी क्या कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, तो उनको भी वहां पर जगह मिला जर्मनी को कि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके एजुकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये सारी चीजें उनको मिली, ठीक है। और एक और चीज आपने देखा कि जो फ्लेमिश एरिया है वहां पर किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? फ्लेमिश एरिया में तो ही ज्यादातर वो थे डच पीपल, और नीचे जो वलोना एरिया है वहां पर कौन थे? फ्रेंच पीपल थे। तो फ्लेमिश जो है वो एक अलग स्टेट हो गया, है ना, और नीचे जो वलेना है अलग स्टेट हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर दी, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्री के अंदर, स्टेट मतलब तो कंट्री होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका बेल्जियम के अंदर जो डिफरेंट प्रोविंसेस जैसे आप कह सकते हो, ठीक है ना, तो उनको जो है ज्यादा पावर मिली अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम में काफी सारे स्टेट थे। यहाँ पर झगड़ा किसका था? मेनली झगड़ा जो है दो के बीच में था, वोलोनिया के बीच में, फ्रेंच के बीच में, ठीक है। तो वोलोनिया और फ्रेंच को जो करने के लिए कि देखिए फ्रेंच पीपल जहां पर ज्यादा रहेंगे तो उनको अपना पता होगा कि हमारे कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। डच पीपल जहां पर होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पर डच के लिए क्या इंटरेस्ट है, हमारा हमारा क्या कल्चर है, ठीक है। तो उनको अपना कल्चर के लिए वो अपना खुद रूल बनाए, फ्रेंच पीपल अपने कल्चर के लिए अपना खुद रूल बनाए। लेकिन जो पूरे कंट्री को लेकर के रूल बनेगा, लाइक डिफेंस सिस्टम क्या होना चाहिए पूरे कंट्री को लेकर के, तो उसमें जो है दोनों का भाग बराबर था, यानी फ्रेंच स्पीकिंग का और डच स्पीकर्स का, दोनों का जो है बराबर था। पूरे कंट्री के लिए अगर कोई कानून बनना है, अब बाकी अपने अपने देश के लिए फ्रेंच अपने हिसाब से बनाएगा और डच अपने हिसाब से बनाएगा, जो अपना अपना उनका एरिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है more power as compared to central government. स्टेट गवर्नमेंट है more power as compared to central government, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लिख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसके बीच में बाधाएं नहीं डाल सकती, रुकावट नहीं पैदा कर सकती कि आप क्या कर रहे हैं ये, या आप इस तरीके से रूल बनाइए, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों की कंपोजिशन है, 50% ये भी 50% वो भी है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म, कि भाई स्टेट के पास, अलग अलग स्टेट के पास अपना अपना राइट होता है, अपना अपना कानून बनाने का हक होता है, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। जगह ऊपर ऊपर में मिटा रहा हूं इसको। यहां पर एक और चीज लिखिएगा, तो ये तो हमें क्या पूरे कंट्री की बात हो गई कि पूरे कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसका रिप्रेजेंटेशन दोनों का होगा, फ्रेंच प्लस डच। वलेनिया और क्या नाम है आपका, इसी तरीके से 2-3 और स्टेट होंगे तो उसके अंदर अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो भी 2-3 स्टेट होंगे, ठीक है। उनकी बात यहाँ पर हो गई।
और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक और बात, कैपिटल सिटी में जो है दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग था। कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज्यादा तादाद में थे और डच जो है वो कम तादाद में थे। तो कैपिटल सिटी में अलग गवर्नमेंट बनी। एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल सिटी एंड डिफरेंट गवर्नमेंट, ये सेपरेट एंड सेपरेट गवर्नमेंट। तो जो कैपिटल सिटी में जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी ना, तो ये जो कैपिटल सिटी में सेपरेट गवर्नमेंट बनी, इसके अंदर भी दोनों का रिप्रेजेंटेशन बराबर हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पूरे कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें तो उसने चांस दिया, किसको चांस दिया? फ्रेंच को, क्योंकि फ्रेंच उसमें माइनॉरिटी में थे। अब यहाँ पर डच माइनॉरिटी में है, तो डच वालों ने कहा कि हम आपको पूरे कंट्री में क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये 50% आपका दे रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर 50% मिलना चाहिए। यानी कि बराबर ही हमें यहाँ पर क्या नाम है कैपिटल सिटी में मिलना चाहिए। तो ब्रुसेल में जो है सेपरेट गवर्नमेंट बनी और इसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों का बराबर रहा। कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट, ऑफ बोथ गवर्नमेंट नहीं, बोथ कम्युनिटी कह सकते हैं हम यहाँ पे, बोथ कम्युनिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी कहाँ पर है आपका? कैपिटल में। कैपिटल सिटी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों ही कम्युनिटी का था, फ्रेंच और डच का। ठीक है, फ्रेंच एंड डच। चलिए यहां तक क्लियर है। तो इन लोगों ने, एक और पॉइंट है इसके बाद आपका, इसको भी मिटाइए देखो। ठीक है, no single community can take decision unilaterally। यानी अकेला ही जो है कोई भी कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी। अगर एक कंट्री यस बोल रही, दूसरी कंट्री नो बोल रही है, अगर यहाँ पे फ्रेंच है और यहाँ डच है, अगर फ्रेंच यस बोल रही है और डच नो बोल रही है, यस प्लस नो जो है, यस प्लस नो जो है वो क्या होगा? नो ही होगा। ठीक है, दोनों की, जब दोनों जिस बात पर एग्री करेंगे वही कानून बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी कानून बनेगा उसके लिए दोनों को ही एग्री करना पड़ेगा, दोनों कम्युनिटी को। ठीक है, एक बात ये हो गई आपकी। और इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, स्टेट गवर्नमेंट बनी, कैपिटल सिटी की अपनी गवर्नमेंट बनी, इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट क्या है? अ कम्युनिटी ठीक है, नोट इट डाउन।
इसके अलावा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका एजुकेशन सिस्टम, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई है। ओके, चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया। दोनों ही हमने देख लिया। क्या देखा हमने? दो कंट्री, दोनों का लगभग एरिया सेम, पॉपुलेशन भी अप्रोक्सीमेटली होगा सेम। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट थी शुरू में। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट था और श्रीलंका में भी कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन श्रीलंका इंडिपेंडेंस होने के बाद उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, लड़ाई हुआ, बहुत ज्यादा श्रीलंका को नुकसान हुआ। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी से काम ली और बेल्जियम ने क्या किया, अपने पावर को शेयर किया। जो आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग, वो ये बता रहा है कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने पावर को शेयर करके अपने कंट्री को बचाया और क्या नाम है, और एक डेवलप कंट्री उभर करके आया है आज के मॉडर्न एरा में, अगर हम देखें तो बेल्जियम को। ठीक है, गेट द पॉइंट। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, मतलब क्यों चाहिए पावर शेयरिंग। इसके हम दो रीजन दे सकते हैं। पहला है प्रूडेंशियल, ठीक है, दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके लिए हम दो रीजन दे सकते हैं। पहला है प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल यानी कि समझदारी से, ठीक है ना, और दूसरा आपका मोरल रीजन है। मोरल का मतलब समझ जानते होंगे, न्यायिक। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या करता है ये पावर शेयरिंग में, इट रिड्यूस इट रिड्यूसेस द यू नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन, आप कह सकते हैं, वेरियस सोशल ग्रुप्स। जैसे आपका क्या हुआ कि उसके अंदर जो है श्रीलंका के अंदर पावर को शेयर नहीं किया गया, एक मेजोरिटी रूल ने पावर किया, तो उनके बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है, सिविल वार चालू हो गया। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, अपने पावर को शेयर किया। इस पावर को शेयर करने की वजह से क्या हुआ कि उनके बीच में जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या, इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ बेटर वे माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक और इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज बेटर फॉर पावर शेयरिंग करने की वजह से क्या हुआ, बेल्जियम में जो है
स्टेबिलिटी पैदा रही, ठीक है ना, कंट्री स्टेबल रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें श्रीलंका में क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी आ गई, लोगों के बीच में वार हो गया, ठीक है। अब मोरल रीजन लिखते हैं हम लोग। पहला रीजन तो हम ये लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पीपल शुड टेल, पीपल या सिटीजन यहां कह दिया, सिटीजन should tell how they citizens should tell how they want to govern, ठीक है। क्योंकि आप गवर्न किसको करोगे, सिटीजन्स को करोगे, तो सिटीजन्स बताएंगे ना कि क्या कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि पावर शेयरिंग में क्या है कि आप कुछ पावर दे देते हैं, रिजर्वेशन इश्यूज हैं, लाइक एग्जांपल रिजर्वेशन जो हम लोग भी देते हैं माइनॉरिटी क्लास को, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट आप लिखिए, किसमें, हाँ हाँ, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री तो दोनों ही, बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, श्रीलंका भी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब आजादी मिली उनको, श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, श्रीलंका में इलेक्शन होने के बाद क्या नाम है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर चीज बना, लेकिन क्या रूल किसकी थी, मेजोरिटी की थी। लेकिन उन्होंने इस स्पिरिट को तोड़ दिया, किस स्पिरिट को तोड़ दिया, डेमोक्रेसी के इस स्पिरिट को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को शेयर नहीं किया। इसने तो किया, बेल्जियम ने अपने पावर को शेयर किया, लेकिन श्रीलंका ने अपने पावर को शेयर नहीं किया, ठीक है ना। तो उसने किसको तोड़ा, डेमोक्रेसी के एक स्पिरिट को तोड़ दिया। हाँ, डेमोक्रेसी का एक सोल है कि पावर को शेयर किया जाए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से पावर हैं, फॉर्म्स ऑफ क्या नाम है पावर शेयरिंग। ये तो आपका ये था कि हमें क्यों पावर शेयरिंग चाहिए, क्या वजह है इसकी, ठीक है। अब हम फॉर्म्स पढ़ाएंगे कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका यही है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद खत्म है चैप्टर। कितना टाइम रह गया, चलिए हो जाएगा आपका। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 आपके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है, जिसको आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और बाकी 2 और है जो आपका सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पहले हम ले लेंगे, सबसे पहला हम पॉइंट ले लेते हैं, पावर शेयरिंग फर्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी लाइक एग्जांपल इंडिया की हम बात लेते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में कितने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, पहला पॉइंट आपका हो गया 3 ऑर्गन्स, आप इसमें लिख सकते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका जुडिशरी, ठीक है। चलिए, और आप कह लेते हैं ये किस तरीके से डिवाइड है आपका,
वर्टिकल लेवल पर, ओ सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपको क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल लेवल पर पावर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का अपना काम होता है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करेगी, और ये जुडिशरी जो कानून को एक्सप्लेन करेगी, या उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको बताएगी कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे मामला इसी ये भी बेहतर इसलिए है कि इनके बीच में चेक एंड बैलेंस हो जाता है कि किसने अपना काम सही से नहीं किया और बाद में जुडिशरी उसका फैसला करती है, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट हो गया पावर शेयरिंग। दूसरा पॉइंट है आपका पावर शेयरिंग अमंग, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को किस तरह से शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, है ना। पावर शेयरिंग को ये आपका क्या है, पावर इज शेयर्ड वर्टिकल लेवल, है ना। वर्टिकल लेवल पर पावर को शेयर किया जाए, ठीक है। ये दो पॉइंट है, दो और हैं, मैं आपको बताता हूं। और यही जो वर्टिकल लेवल पर जो शेयर किया जाता है, इसी को आप क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है। किसका, फेडरलिज्म का डिफिनेशन यही हुआ कि जो पावर है वो लोगों के बीच में, क्या नाम, स्टेट्स के पावर अपनी अलग होनी चाहिए, सेंटर की पावर अपनी अलग होनी चाहिए, लोकल की पावर भी होनी चाहिए। तो पावर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ पावर इस तरीके की होती है कि जिसके अंदर सेंटर आपकी कुछ कह ही नहीं सकती। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स के पावर ऐसी ऐसी कुछ स्टेट्स के पास, यानी जो स्टेट्स हैं उनके पास कुछ ऐसी पावर होती है जिनके बीच में सेंटर कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। हाँ, और क्या नाम है, यूएसए का तो और मामला है। यूएसए का मामला है कि उसमें तो बोलेगी ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट ने कह दिया वो स्टेट को सुनना पड़ेगा, सेंटर को सुनना पड़ेगा। बेल्जियम में भी ये हुआ कि सेंटर की जो है सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट, ठीक है। चलिए, अब है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसके अंदर क्या जाता है,
ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिजर्वेशन है, ठीक है ना। सोशल ग्रुप्स का लाइक एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उनके पास भी क्या नाम है, उनके भी कुछ ऐसे अपने राइट्स है कि अपने इंस्टीट्यूशन को बना सकती है, तो इनको भी कुछ पावर शेयर किया गया है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो आपकी, इसमें पढ़ा आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को बेल्जियम में, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इज एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। अब आपका बस लास्ट पॉइंट रह गया है, वो है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। क्या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कहते हैं लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं जो काफी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे अब क्या नाम है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, पर्शियन, जो अरबी अरबी सारे जो बोलेंगे ना, इन सारे लैंग्वेज के समूह को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अब देखिए यहां पर हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट में, देखा ना बेल्जियम में किस तरह से उनको पावर दी गई, किस किस चीज की लड़ाई थी, लैंग्वेज को लेकर के तो लड़ाई थी, तो उनको पावर मिला, वही चीज है लिंग्विस्टिक ग्रुप। क्योंकि फिर तो जर्मनी पूरा बाहर ही हो जाती, जर्मनी तो 1% थी, लेकिन जर्मनी को भी पावर मिला, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है आपका पावर शेयरिंग अमंग different pressure groups, political parties, जो मूवमेंट्स आते हैं, मूवमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ पावर इन लोगों को भी दिया गया है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स लाइक आपका जो है एनजीओ हो गया, वो भी आप प्रेशर ग्रुप्स कह सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स होते हैं, काफी सारे लोग नहीं धरने के लिए चले जाते हैं, कोई मूवमेंट निकाल देते हैं, तो उनके पास भी कुछ पावर है। पावर मीन्स यहाँ पर कि उनको हक मिला है, उनको राइट मिला है कि वो अपनी आवाज को उठा सके, तो ये भी एक तरीके का पावर है। गवर्नमेंट तो आपको कभी रोकने नहीं जाती कि भाई आप क्यों इस चीज के लिए विद्रोह कर रहे हैं, आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो हर सिटीजन के पास पावर है, पावर ही है ना सिटीजन के पास, वो आके खड़ा हो सके और कह सके कि मेरे राइट का वायलेशन है, ठीक है। तो इनके बीच में भी पावर दिया गया है। इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ठीक है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो हमने क्या है इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में अगर हम समअप करें पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, तो हमने कुल मिलाकर के आई थिंक 4 चीजें पढ़ी हैं। पहला कंपोजिशन पढ़ा दोनों कंट्री के बीच में, दो बेल्जियम के बीच में, श्रीलंका के बीच में, कि उनके पास दोनों के पास किस तरीके से क्या नाम है लैंग्वेज बेसिस पर डिफरेंसेस था दोनों कंट्री में। उसके बाद ये पढ़ा हमने कि किस तरीके से बेल्जियम ने पावर क्या नाम है लोगों को अकोमोडेट किया, किस तरह किया, लोगों के बीच में पावर को शेयर करके लोगों को अकोमोडेट किया, किसने, बेल्जियम ने। लेकिन श्रीलंका ने उसका उल्टा कर दिया, श्रीलंका ने क्या किया कि मेरे पास मेजोरिटी रूल है, हमारे पास मेजोरिटी है, तो सिन्हाला कम्युनिटी को सारी पावर आ गई, और सिन्हाला कम्युनिटी ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए, और उसने क्या किया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो तमिल स्पीकर्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया, बाहर छाड़ दिया,
गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो, या चाहे कुछ भी, उनके जो तमिल स्पीकर्स थे उनको बाहर की तरफ छांट दिया। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से जब उनको बाहर छांटा गया तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनके बीच में वार हुआ, डिस्ट्रक्शंस पैदा हो गए। और उधर दूसरी तरफ जो है बेल्जियम ने क्या नाम है अपने सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किया। बदलाव करने के बाद इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों ग्रुप्स के बीच में, यानी दोनों लैंग्वेज बेसिस पे जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म करने के लिए दोनों में पावर बांट दी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पावर है वो हमारे लिए क्या नाम है डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो एक ये है कि समझदारी, एक है न्यायिक की वजह से, ठीक है, मोरालिटी की वजह से। तो अब फिर हमने चौथे पॉइंट में ये देखा कि पावर शेयरिंग जो है उनका डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। तो उसमें हमने 4 फॉर्म्स देखे चौथे टॉपिक में। पहला देखा कि डिफरेंट कैन पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बेसिस पे देखा, जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पर था, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे देखा पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है वो वर्टिकल लेवल पर था, यानी कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें हमने सेंटर देखा, स्टेट देखा, आपका लोकल गवर्नमेंट देखा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका ये था कि यह है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उनको भी कुछ पावर दी गई। और चौथा आपका यह है कि पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स को भी दिया गया। लाइक कोई चीज अगर गलत हो जाती है तो प्रेशर ग्रुप आ जाती है, आवाज उठाने लगती है कि इनके साथ ये हुआ है, लोगों को इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। तो ये था टोटल आपका सम ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो आज फिर इतना ही। कोई सवाल है क्या किसी बच्चे का?